In chapter 2nd, we learned about the South Indian kingdoms and other information. Now, in this chapter, we will learn about Delhi Sultans. Before 12th century, Delhi was not capital. Its name was Indraprastha, as you know in Mahabharata. Delhi first became capital in the 12th century, in the period of Tomar Rajput. After that, Chauhans of Ajmer, they defeated Tomaraj, and it became the important city of these two rulers. The Jain rich merchants came there and settled there, and because of them there were some coins minted, and they known as Dehliwal. The Delhi Sultanate. The earliest rulers of the Delhi Sultanate were the Mamluks. In 1206, Muhammad Ghori died and Qutbuddin Aibak declared himself the Sultan of Delhi. The period between 1206 AD and 1526 AD in Indian history is known as Delhi Sultanate. During this period of over 300 years, 5 dynasties ruled over Delhi. The slave dynasty. Qutbuddin Aibak laid the foundation for the slave dynasty. He ruled for 4 years. The construction of Qutb Minar was started by Qutbuddin but was completed by his son Iltutmish. An able and powerful administrator, Iltutmish established a vast kingdom by 1220 AD. Iltutmish became the Sultan after defeating Aram Shah, a son of Aibak. Iltutmish's sons were not capable of handling the kingdom. So he had announced that after his death, his daughter Razia Sultana would be the ruler. Razia ruled from 1236 to 1240 AD. Being a wise and capable ruler, she brought many reforms in the state. Being a woman, she had to face many difficulties. The officers under her resented taking orders from her. Dressed as a man, she led her army in the battlefields. This created displeasure in the male-dominated society. Some of her nobles plotted against her and she was killed in 1040 AD. This created utter confusion and chaos. In 1248 AD, Nasiruddin, the youngest son of Iltutmish, was crowned as king. A devout Muslim and a peace-loving man, he was a failure as a king. Administration was carried on by his general Balban. Balban was a strong-willed, powerful personality and a member of Chalisa or the 40, a group of Turkish nobles selected and trained by Iltutmish for his self-defense. After the death of Nasiruddin in AD 1266, Balban became the Sultan of Delhi. A strict disciplinarian, he recommended simple living. Balban died in 1287. His grandson was the last ruler of slave dynasty. He was murdered in 1290 and the throne went to Khilji dynasty. The Khilji dynasty, 1290 to 1320 AD. Among Khilji kings, the most ambitious was Alauddin Khilji. He had bigger dreams than Balban. Like Alexander, he wanted to conquer the world. He ascended the throne by killing his uncle and father-in-law. Apart from Gujarat and Malwa, he captured the famous Ranthambore and Chittor forts. He even sent a large army to the south under the command of Malik Kafur. Malik Kafur looted and collected very huge hauls of gold from different kingdoms. He attacked even Madurai. Thus, for a brief period, Alauddin Khilji's domain was as large as that of King Ashoka. Being an able administrator, he brought about many reforms. He kept administration and religion separate. He introduced price control and market control. Thus, everybody were able to get food items at low prices. Bribery was punishable. Soldiers received money as salaries. Land revenue was according to the size of the land. Alauddin was a lover of art and music. He encouraged and respected artists.
Amir Khusro was a member in his court. Musical instruments, sitar and tabla, were invented by him. After him, there was an immense power struggle. In 1320 AD, the Tughlaq family took control of the Sultanate. The Tughlaq dynasty, 1320 to 1399 AD. The Tughlaqs also wished to possess an empire embracing the whole of India. Ghiyasuddin Tughlaq was the first Tughlaq king. He was succeeded by Muhammad Tughlaq. He was an able administrator, but his plan to shift his capital from Delhi to Devagiri, which he renamed as Daulatabad, failed. His another plan of having copper and brass coins also failed. Ibn Battuta, an Arab traveler, visited the Sultanate and has written extensively about the kingdom. Muhammad Tughlaq lost the support of his nobles and the ulema. Revolts broke out in Bengal, Warangal, Gujarat, Sindh, Awadh, Multan and Daulatabad. Firoz Shah Tughlaq succeeded Muhammad Tughlaq. He became very popular because he spent less on war and armies and more on building hospitals, educational institutions, bridges, canals, etc. for the welfare of the people. During his time, many Sanskrit works were translated to Arabic. Timur, a Mongol, invaded India. He had heard about the wealth of India. He marched to Delhi and defeated the Tughlaq rulers. Timur's deputy, Khizr Khan, settled in Delhi and declared himself as the Sultan of Delhi. He founded the Sayyid dynasty, which lasted for 37 years. This dynasty was usurped by the Lodhis, an Afghan tribe. The Lodhi dynasty, 1451 to 1526 AD. Sikandar Lodhi ruled over the region of Ganga Valley as far as western Bengal. He shifted the capital from Delhi to a new town which later came to be known as Agra. The most important ruler of the Lodhi dynasty was Ibrahim Lodhi, son of Sikandar Lodhi. However, his importance was not due to any welfare measures but due to his arrogance. He was a tyrant. His nobles and the people conspired with Babur, the king of Kabul, to overthrow and succeeded in 1526. The transformation of Delhi into capital started in the beginning of the 13th century. Before the period of Sultanate, there were two dynasties, Tomaras and Chauhanas. After defeating Chauhans, a slave dynasty ruled over Delhi. They were also known as Mamluk dynasty. There were another dynasties, Khalji Tughlaqs, Sayyids and Lodhis up to 1526. The Sultanate period was started from 1206 to 1526. अब हम दिल्ली सल्तनत पीरियड के सोर्सेस, हिस्ट्री के जो सोर्सेस है उनके बारे में जानकारी लेंगे। जैसा कि आपको पता है, इन सोर्सेस में या साधनों में इंस्क्रिप्शन आते हैं जिनको शिलालेख कहा जाता है। उसके बाद आते हैं कॉइन्स और तीसरा प्रकार होता है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में विभिन्न प्रकार की बिल्डिंग्स आती हैं। अब इसी के साथ साथ जो दिल्ली इन सुल्तानों के दरबार में जो भी राइटर्स होते थे, लर्नेड पर्सन जिनको कहा जाता है, तो ऐसे लोगों ने भी कुछ राइटिंग वर्क किया है जो पर्शियन लैंग्वेज में है और इनको कहा जाता था तारीख अथवा तवारीख। तारीख मीन्स सिंगुलर वचन है और तवारीख मीन अनेक वचन जिनको प्लूरल्स कहा जाता है। तो ये लर्नेड मैन कौन होते थे? तो ज़्यादातर रूलर्स के दरबार में होने वाले सेक्रेटरीज, उसके साथ साथ उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स है या उनके दरबार में होने वाले कवि है या दरबार के कुछ अन्य लोग हैं जिन्होंने सुल्तानों के बारे में जानकारी दी है या लिखित रूप में की है। अब इसके पीछे क्या कारण था कि उनको लगता था हमें कुछ न कुछ अच्छा सा रिवॉर्ड्स मिलना चाहिए और उसी के साथ साथ इन कोर्टियर्स में या इन लोगों में वे लोग अपने सुल्तान को या रूलर को एडवाइस करते थे कि हमें अपने समाज में
एक प्रकार का आइडियल सोशल ऑर्डर प्रिजर्व करना चाहिए। उसमें क्या था कि बर्थ राइट और जेंडर डिस्टिंक्शन इस प्रकार से होता था। अब बर्थ राइट क्या होता है कि जो भी नोबल लोग हैं उनके बच्चों को सुल्तान के दरबार में उच्च पद मिलना चाहिए, और जो निम्न क्वालिटी के लोग हैं उनकी दरबार में कोई जगह नहीं होगी। और दूसरी बात थी जेंडर डिस्टिंक्शन, मीन्स मेन और वुमेन में होने वाला एक प्रकार का डिफरेंस। तो इस प्रकार से वे अपने रूलर्स को उसी प्रकार का एडवाइस देते थे। एक्सपांशन ऑफ दिल्ली सल्तनत, ये एक्सपांशन जो है वो 3 रूलर्स के कार्यकाल में हुआ है, जिसमें घियासुद्दीन बलबन का पहला नाम आएगा, उसके बाद आते हैं अलाउद्दीन खलजी और तीसरा है मोहम्मद तुगलक। अब इनमें हिंटरलैंड एंड गैरिसन टाउन ऐसे वर्ड्स आते हैं। हिंटरलैंड का मतलब है कि जो प्लेस है कि वो सिटी से एडजेसेंट है, मीन्स सिटी को सटा हुआ है, लगा हुआ है। और दूसरा है गैरिसन टाउन, मीन्स एक फोर्टिफाइड प्लेस है, एरिया है जहाँ पर सोल्जर्स रहते हैं। तो इन हिंटरलैंड्स या गैरिसन टाउन के आसपास सुल्तानों ने अपनी सत्ता का विस्तार किया है या अपना एरिया एक्सपांड किया है, उसी को कहा जाता है इंटरनल फ्रंटियर। अब उसमें उन्होंने क्या किया है कि गंगा यमुना का जो दोआब एरिया है उसमें फॉरेस्ट को क्लियर करके वहाँ के मूल निवासी हंटर गैदरर्स या पास्टोरियलिस्ट इनको वहाँ से हटाया गया और उनकी जगह पर किसानों को, पीजेंट्स को वहाँ पर सेटल किया गया और उनको एग्रीकल्चर करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया। तो ये हो गया इंटरनल फ्रंटियर, इंटरनल एक्सपांशन। अब एक्सटर्नल फ्रंटियर या दूर के स्थानों पर उन्होंने भी, यानी जैसे अलाउद्दीन खलजी और मोहम्मद तुगलक के ही कार्यकाल में साउथ इंडिया में उन्होंने उस समय मिलिट्री एक्सपेडिशंस इनवाइट किए थे, स्टार्ट किए थे और वहाँ पर उन्होंने अपना राज्य विस्तृत करने के प्रयास किए हैं। उसी को कहा जाता है एक्सटर्नल फ्रंटियर, जहाँ से उनकी सीमाएं या बॉर्डर्स जो है वो साउथ इंडिया तक एक्सपांड होती चली गई। मॉस्क और मस्जिद, इट इज़ द प्लेस वेयर अ मुस्लिम प्रोस्टेट्स इन रेवरेंस टू अल्लाह, मीन्स कि ये मुस्लिम लोग जो होते हैं वो वहाँ पर प्रेयर करते हैं। अब ये किसके गाइडेंस में करते हैं? जैसे एक कोई रिस्पेक्टेड पर्सन होता है और उसी के गाइडेंस में ये लोग वहाँ पर प्रेयर करते हैं। प्रेयर करते समय उनका फेस जो होता है वो मक्का की डायरेक्शन की ओर होता है। जैसे इंडिया में मक्का वेस्टर्न डायरेक्शन में आता है और इसलिए इनका फेस भी वेस्टर्न डायरेक्शन में होता है। अब इस पाठ में या इस किताब में ही 2, 3, 4 एंड 5 नाम के फिगर्स दिए हैं, देखिए अलग अलग मॉस्क के या मस्जिद के। अब इसी में से आपको उनको कंपेयर करना है और उसी के साथ साथ उनकी सिमिलैरिटीज़ और उनके बीच होने वाले डिफरेंसेस को अपनी नोटबुक में नोट करना है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर सल्तनत पीरियड। अब इसमें जैसे कि किंगडम शुरुआती रूप में किंगडम था, वही जैसे जैसे एम्पायर बनता गया, मीन्स किंगडम का वास्ट एरिया में एक्सपांड होता गया, उसी समय रूलर्स जो है, सुल्तान जो है, उनको रिलायबल गवर्नर्स और एडमिनिस्ट्रेटर की ज़रूरत महसूस हुई। तो ऐसे समय इल्तुतमिश के समय उसने जो मिलिट्री सर्विसेज के लिए स्लेव्स को परचेस किया था वही उनको ही उन्होंने फेवर किया था, यानी वही उनके गवर्नर्स या एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में काम करने लगे। उन लोगों को कहा जाता था बंदागण। बंदागण मीन्स जिनको परचेस किया गया है या उनको बॉन्ड पर रखा गया है। अब इन्होंने उनको क्या किया है कि केयरफुली ट्रेन किया है। उसके बाद टोटली ये लोग जो है सुल्तान पर डिपेंड रहने लगे हैं। अब इसी के कारण ही सुल्तान के साथ उनका एक प्रकार का विश्वास का संबंध निर्माण हुआ है और वे दोनों भी आपस में एक दूसरे से रिलायबल होने लगे। खलजी और तुगलक के कार्यकाल में
ऐसी बातें नहीं थी। खलजी और तुगलक ने मिलिट्री कमांडर्स को गवर्नर के रूप में अपॉइंट करना शुरू किया है और इनको ही कुछ एरिया देकर, जैसे उनको कहा जाता था मुक्ति या इकतादार, और उनके एरिया को इकता कहा जाता था। इकता मीन्स एम्पायर को अलग अलग प्रांतों में या अलग अलग भागों में डिवाइड किया था, उसको ही इकता कहा जाता था। अब मुक्ति या इकतादार की ड्यूटीज़ क्या थी? तो मिलिट्री कैंपेन्स को लीड करना है, उसी के साथ साथ अपने एरिया में, अपने इकताज में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है। साथ ही में उनके पेमेंट के रूप में उनको लैंड रेवेन्यू कलेक्ट करने की परमिशन दी गई थी। उसी से वे अपने लिए भी सैलरी लेते थे, साथ ही अपने सोल्जर्स को भी पेमेंट देते थे। अलाउद्दीन खलजी के कार्यकाल में लैंड रेवेन्यू का असेसमेंट और कलेक्शन, यह कार्य जो है वो सुल्तान के अधिकार में ही किया गया। अब इसमें हिंटरलैंड पर कंट्रोल के बाद उन्होंने वहाँ के जो चीफ्टेंस थे या सामंत थे या रिच लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको फोर्सफुली सुल्तान के अधिकार को एक्सेप्ट करने के लिए कहा गया। अब इसी के साथ साथ उनके अधिकार सभी कैंसिल किए गए और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, मीन्स सुल्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटर है, उन्हीं को यह सभी अधिकार दिए गए। अब लार्ज लैंड होने के कारण दूर के प्रदेशों पर उनका कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट होता था। ऐसे समय उन्होंने अपने ही लोगों को वहाँ पर अपॉइंट किया है और उनके द्वारा इनकम के लिए टैक्स कलेक्शन करना शुरू किया। अब टैक्स 3 प्रकार के थे। एक तो पहला है लैंड रेवेन्यू, जिसको खराज कहा जाता था। दूसरा है कैटल पर होने वाला टैक्स और तीसरा है हाउसेस पर होने वाला टैक्स। लैंड रेवेन्यू ज़्यादातर 50% जिनका उत्पन्न यानी अपने उत्पन्न के 50% या 50% इस क्वांटिटी में उसको लिया जाता था।